Hello students, today we are going to study for class 9th in the bio section, chapter number 5 according to your book, and according to the bio section, this is the chapter number 2, the fundamental unit of life. In this unit we study about what is the cell, who invented the cell, and what is the compound microscope, what are those parts of the compound microscope, or how the cell appeared under the observation of microscope, which types of cells are there, what are these shapes, and what is the plasma membrane, cell structures, or different types of organelles. These types of things are we studied, and what is the main difference between the eukaryotic and prokaryotic cells, cytoplasm study. So let me start this chapter, and I consider these all things in the part 1. Okay, so in the part 1 section, at first we study about what is the cell. So bacho, please you listen this carefully, that cells is the basic functional and structural unit of our body, which is responsible for every function and structure basically. And at first, in 1665, Robert Hooke made the various types of observations in a self-designed microscope, or he looked these boxes types of structures, or like the beehive in the Latin, which we called as a cell, or cell means in a Latin little room. Or after that, when Robert Hooke studied the cell, then there is a Leeuwenhoek. Leeuwenhoek was also called as father of antibiotics, and he studied the cell under the compound microscope. The compound microscope, it is a type of small piece of, we can say that it consists of various types of cells, mainly lenses. uh, Here we see that there is a body tube, and on the upper side of the body tube there is the eyepiece, and on the lower side of the body tube there is a objective lens here, or below the objective lens there is a flat platform, which is also called as condenser platform or stage. And on the middle side of the stage there is a slide portion, where we place the microscopic slide here with the help of attached by the help of clips. And inside the stage there is a big lens that is called as condenser. Or on the lateral side of this body tube, here is the arm of the microscope, which is attached with the stage. Or here it is a base. The arm is also attached the full portion of the upper side and the lower side base with the help of this stage, or with the help of this arm also from the lateral side. Here are some types of nut and bolts are here, which is also called as adjustments. In this compound microscope there is a coarse adjustment, which is showing by the big button, and here there is a fine adjustment. We can accommodate this whole microscope with this help of this coarse adjustment and fine adjustment to appear the object, or to showing the object with the help of microscope under the observation very deeply and very clearly. Okay, so these all types of things. And with the help of these objective lens and condenser, these both lenses are helped to see anything, or to see the microscopic things under this microscopic observations. Or this microscope observe the things under low power followed by the high powers of a compound microscope. That means objective lens are the low power, and the condenser lens considered as the high power lens. Okay. Or in this section, uh, in the case of objective lens there is a concave lens. Okay,
here is a concave lens. Or when we see the different types of things or onion peel under the microscopic study, then we see here these are different types of quarter or chambers are looking here, in which small tiny drops are here. That is also called as nucleus. These are the cells of an onion peel. So what are the structures which we being observed? So before this, I want to study about that Robert Hooke in 1665 discovered the cells under the primitive microscopic study, and he also observed the cork-like cells. Then in 1674, Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. And here it was Robert Brown who discovered in 1831 the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory of all plants and animals, which was presented by two biologists, Leiden and Swan. The cell theory further expanded by Virchow, and he called as the protoplasm omnis cellula cellula. It means that all cells arise from pre-existing cells. बच्चों यहाँ पर देखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क लाइक सेल्स देखी थी, जिसको उन्होंने सेल कहा। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक मैंने अभी बताया था फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। इन्होंने सबसे पहले इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा स्टडी की लिविंग सेल्स की पॉन्ड वाटर में। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे जिन्होंने सबसे पहले अंडर माइक्रोस्कोप 1831 में स्टडी की कि सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। पुरकिंजे ने 1839 में ये देखा कि प्रोटोप्लाज्म, इसको टर्म दिया। साइटोप्लाज्म को एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। सेल थ्योरी दी थी सभी प्लांट और एनिमल्स में जो है सेल्स पाई जाती हैं, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको रिप्रेजेंट किया था इस सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान। अब आता है सेल थ्योरी के बाद में सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया था वर्चाओ ने, और उन्होंने कहा कि सभी जितने भी सेल्स हैं वो सारी की सारी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि एक सेल जो है वो अपने जैसी पुरानी जो पहले से सेल है उससे बनती है। और 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया, जिसकी डिस्कवरी की थी नॉल एंड रुस्का ने। नॉल एंड रुस्का इन्होंने बनाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इनकी सहायता से देखा जा सका था कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं वेरियस ऑर्गेनल्स के, उन्होंने इसको देखा था। हम अगर इन मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें अमीबा को, तो अमीबा जो है उसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ऐसे बहुत सारे बेसिक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये जो कि एक ही सेल से बने होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म ऐसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, क्लोमाइडोमोनास है, ये सब एक सिंगल सेल से बनते हैं। इन सिंगल सेल से बनने के कारण इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि सिंगल सेल से बनते हैं। और जो अदर ग्रुप होता है जिसमें मैनी सेल ग्रुप्स टुगेदर इन अ सिंगल सेल एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन द सेल बॉडीज वर्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो सारे प्राणी जिसके अंदर सेल्स जो होती है ग्रुप्स में होती है, जैसे हमारे अंदर है, तो वो डिफरेंट फंक्शन करती है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आता है, जैसे आपने देखिए ये देखा होगा हमारे बॉडी की सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी है, नर्वस सेल। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे छोटी सेल होती है हमारे बॉडी में, तो नहीं पाई जाती, लेकिन वो बैक्टीरिया सेल है जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ इज अ स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल है पीपीएलओ। प्लूरो, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों प्लूरो पी निमोनिया, या निमोनिया की सेल होती है। लाइक ऑर्गेनिज्म इट मीन्स पीपीएलओ सेल स्मॉलेस्ट सेल है, छोटी सेल, प्लूरो पी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी सेल लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, ये दिख रही है आपको, नर्व सेल। फिर ब्लड सेल्स है जो गोल शेप में है, राउंड शेप में। स्मूथ मसल सेल्स है, बहुत स्मूथ होती हैं। बोन सेल्स है जो बहुत ही हार्ड होती हैं। ये ओवम है, ये भी एक सेल है पूरा। और स्पर्म जो है वो सबसे छोटी सेल है, लेकिन सबसे छोटी सेल उससे भी पीपीएलओ है। स्पर्म भी एक सेल है। और ये आपने वेरियस टाइप की सेल्स देख रखी है। इसके बाद आता है बच्चों कि हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कई डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से एक ग्रुप में अटैच होती हैं, जिनको बोलते हैं सेल का जब ग्रुप बन जाता है तो उसे बोलते हैं टिश्यू। और ये डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, जैसे हार्ट की सेल्स हैं वो कार्डियक सेल्स कहलाएंगी, जो पंपिंग का काम करती हैं। लंग्स की सेल है वो रिस्पिरेशन का काम करेंगे, रिस्पिरेटरी सेल्स कहलाएंगी। एल्व्यूलर सेल्स भी इनको बोलते हैं।
ऐसे ही डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में काम करती हैं। ऐसे ही आपके ब्रेन में नर्वस सेल्स होती हैं जो नर्वाइन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती हैं। अब आता है कि सेल जो है उसमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो क्या क्या दिखेगा। हर एक सेल जो है माइक्रोस्कोप में देखी जाती है तो उसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है, न्यूक्लियस दिखता है और साइटोप्लाज्म दिखता है। मतलब अगर लिविंग बीइंग में देखें और लिविंग बीइंग में भी अगर प्लांट सेल देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको बाहर की तरफ सेल वॉल दिखेगी और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दिखेगी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन एनिमल में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो देखा ये गया है जनरली कि जो कोई भी प्रोसेस चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल्स साइटोप्लाज्म में चलते हैं उसमें क्या होता है कि जो एक होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस आसानी से पास आउट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस अपने आप ही बहाव होने लगेगा। ठीक है। अब आता है दूसरा एक डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और अगर इसी डिफ्यूजन प्रोसेस में यही वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चलता रहे, लेकिन उसका अगर मूवमेंट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आती है, तो अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है तब हम इस पूरे होल प्रोसेस को बोलने लग जाते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, when the movement of diffusion takes place in which the water molecules are moved through such a selectively permeable membrane, that is called as osmosis। अगर वही डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड बह रहा है, लेकिन अगर वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होके जा रहा है तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर जो है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से छनने वाला जो पानी होता है उसमें भी पार्टिकल्स का मूवमेंट इसी पर डिपेंड करता है और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। अब आता है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि बाहर का वातावरण जो जिसमें कंसंट्रेशन हाई होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जब कंसंट्रेशन लो होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो ये हाइपोटोनिक का मतलब हो गया यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगा, और अगर हाइपरटोनिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन। ये क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। अब आता है कि अगर दोनों का अंदर वाले फ्लूइड का और बाहर वाले फ्लूइड का दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तब उसे क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए बाहर के सॉल्यूशन का कंटेंट हाइपोटोनिक है और अंदर वाला हाइपरटोनिक है, मान लीजिए ये दो ऐसे फ्लूइड भरे हुए हैं आपस में और इसका अंदर जो है वो हाइपो है यानी कि कम है कंसंट्रेशन, और बाहर वाले का कंसंट्रेशन जो है वो हाइपर है, तो मूवमेंट पार्टिकल का कहाँ जाएगा? तो मूवमेंट का पार्टिकल मूव करेगा, मैंने बताया था आपको, वो हमेशा मूव करेगा हाई टू लो। तो यानी कि यहाँ से कंसंट्रेशन जो कहते हैं कि मतलब पानी जो अगर मान लीजिए हाई पर कंसंट्रेशन मतलब है इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है और यहाँ पर कम है। तो अभी देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर नमक है, नमक में हाइपर कंसंट्रेशन है और यहाँ पानी है, तो पानी का मूवमेंट जो है वो इधर से इधर की है, यानी कि लो से हाई की तरफ जाएगा, है ना, फ्रॉम लो टू हाई। ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि ये अभी मैम तो हाई टू लो बता रही थी, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वो देखा जाता है कि फ्लूइड का कंसंट्रेशन, जैसे पानी अगर अंदर बह रहा है, अंदर भरा हुआ है सेल के, और बाहर नमक का पानी है, नमक ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए क्या होगा? पानी जो मूव करेगा वो नमक की तरफ करेगा। ऐसे ही किशमिश को अगर आप पानी में डालिए तो किशमिश के अंदर के फ्लूइड का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए किशमिश श्रिंक है, इसके अंदर का कंसंट्रेशन हाइपर हो जाएगा यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसे पानी में डाल दिया आपने, यहाँ पानी पड़ा, तो पानी जो होता है वो उसका कंसंट्रेशन होता है लो। तो यहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट किधर होगा? लो टू हाई, इधर। ठीक है। तो लो टू हाई याद रखिएगा।
अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंसंट्रेशन है जहाँ पर दोनों में ही बराबर इक्वल कंसंट्रेशन है, इसका भी और इसका भी, दोनों का इक्वल है, तो ये आइसोटोनिक हो जाएगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो नो मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आता है बच्चों इसके बाद में कि डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद में हम ये भी पढ़ेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस साइटोप्लाज्म के ऊपर। और अगर मान लीजिए कि कोई फूड पार्टिकल आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के संपर्क में, कांटेक्ट में, तो वो उसको इंगल्फ कर लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, अब आती है सेल वॉल। सेल वॉल की बात हम करेंगे तो सेल वॉल जो है वो मैक्सिमम प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो ये दैट इज अकर इन द प्लांट सेल मोस्टली, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। और इसमें प्लांट सेल में ये पाए जाने से क्या होता है, ये बहुत ही रिजिड होती है, आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लाई करती है। मैक्सिमम प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, वो लिग्निन या सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत सारा लिग्निन का जमाव होता है। ये प्लांट सेल जो होती है वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू और श्रिंक भी हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जब सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अब आता है बच्चों की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की बात हो गई तो सेल बहुत सारी है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह की बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये इसके बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल के और सेल के अंदर हमें एक फर्दर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो आपको स्टेनिंग करके हुए दिखता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत ही प्राइमरी न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसा न्यूक्लियोइड टाइप का ये न्यूक्लियस है प्राइमरी सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, जिसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, बहुत ही धुंधला होता है, धूमिल न्यूक्लियस होता है। बाहर सेल वॉल होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनमें राइबोसोम भी प्रिमिटिव टाइप का है और बाकी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। इनका जो डीएनए आरएनए होता है, इसमें मेनली आरएनए पाया जाता है, डीएनए बहुत कम पाया जाता है। क्रोमोसोम्स होते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली जो है 10 से 10⁻6 माइक्रोस्कोप की होती है। दूसरी बात है कि ये जो है न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, और न्यूक्लियोइड जो है वो क्रोमोसोम सिंगल टाइप है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में सेल बड़े साइज की होती है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, साउंडेड बाय, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, और मेम्ब्रेन जो होती है बाउंड सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर सारे इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों एक शेप हुआ जिसका शेप है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो ये है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी दिख रहा है, सारे सेल ऑर्गेनल भी दिखेंगे, ये एनिमल सेल दिखाइए। तो बच्चों अभी इस फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर मैं आप आगे डिस्कस करूँगी अगले चैप्टर में, इसके पार्ट 2 में सेल ऑर्गेनल से। ओके, टिल देन गुड बाय एंड प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब माई चैनल टू।